ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، علماء کرام کی جماعت بھی ایمانداری کی باتیں کرتی ہیں، علماء کرام بھی اپنی قوم کو صحیح راہ دکھانے کی صحیح کرتے ہیں۔ اسی تصور اور خیال کے ساتھ آپ سے تھوڑی سی باتیں کروں گا، میری طرف آپ توجہ دیجیے۔ میں جانتا ہوں، اور صرف میں نہیں جانتا، علماء کرام بھی جانتے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ آپ آئے دن جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، آج یہاں جلسہ ہے، کل کہیں اور جلسہ ہے، پرسوں کسی اور علاقے میں جلسہ ہے، آپ شرکت فرماتے ہیں۔ جلسے میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ حضرات، جلسے بے مقصد نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ اگر جلسے کا مقصد سامنے نہ آیا تو جلسہ بے مقصد ہو گیا۔ پھر جب جلسہ بے مقصد ہوگا آپ کے آقا کو تکلیف ہوگی۔ جب جلسہ بے مقصد ہوگا سرکار غوث پاک کو تکلیف ہوگی۔ جب جلسہ بے مقصد ہوگا سرکار خواجہ غریب نواز کو تکلیف ہوگی۔ آپ ہرگز اپنے آقاؤں کو تکلیف نہ دیں، جلسے کو با مقصد بنائیں۔ جلسے اس لیے نہیں کیے جاتے ہیں کہ یہاں آ کر ذہنی عیاشی کی جائے، یہاں انجوائے کیا جائے، یہاں مستی لٹائی جائیں۔ حضرات، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنایا جائے، جھوٹے کو سچا بنایا جائے، گنہگار کو نیکوکار بنایا جائے، جو راستہ بھٹک گیا ہو اسے راستہ دکھایا جائے، جو خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو اسے خدا کی رحمتوں کے قریب کیا جائے۔ حضرات، اگر اس مقصد کی خاطر آپ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میں بچوں سے بھی گزارش کروں گا، بچوں معاف کرنا، میں تم سے جو کچھ کہوں گا ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے، لیکن برا مت ماننا۔ آج تمہارے سامنے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پوری رات نعرے لگتے ہوئے گزر جاتی ہے، کوئی بات سامنے ایسی نہیں آتی جس سے ہماری قوم کے بچوں کا فائدہ ہو سکے۔ مجھ کو تو کبھی کبھی حضرت ایسا لگتا ہے آنے والے یہ 2 سال 15 سال کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو 15 سال کے بعد یہ معلوم ہی نہیں رہے گا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرات، آج تو سیرت بیان ہی نہیں کی جاتی ہے، سیرت بیان کروایا کیجئے علماء کرام سے۔ اس سے پہلے ایک گفتگو ہوئی علامہ شکیل احمد صاحب کی، بڑی خوشی ہوئی مجھ کو، بامعنی گفتگو، بامراد گفتگو، ایسی ہی گفتگو جلسے میں ہونی چاہیے جس سے ہماری قوم کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کا وقت اب نہ لے کر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی سعادتیں حاصل کروں۔ علماء کرام کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں، میں تو کسی قابل ہوں نہیں کہ توجہ کا طلبگار بنوں، بس دعائیں دے دیں تو اس کمزور کو سہارا مل جائے۔ تھوڑی سی محبتیں آپ پیش کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے درمیان کچھ باتیں کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اگر کہ آپ کی اجازت ہو تو اس کمیٹی کا نام غالباً کیا ہے وہ عاشقان غوث الورا، 2-3 شعر منقبت شریف کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ترنم میں نہیں، چونکہ ترنم مجھ سے دور رہتا ہے اور کبھی کبھی ترنم قریب آتا ہے تو پھر استعمال کرتا ہوں۔ ابھی تحت میں آپ 2-3 شعر سماعت فرمائیں، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ آپ کا تو ایک شعر بار بار مجھ کو یاد آ رہا ہے، کیا مطلب آپ نے پڑھا ہے بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کروں بات غوث اعظم کی،
کیا کروں بات غوث اعظم کی، ذی حشم ذات غوث اعظم کی، کیا کروں بات غوث اعظم کی، ذی حشم ذات غوث اعظم کی، حکم رب سے جلا دیے مردے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، حکم رب سے جلا دیے مردے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، بینا کرتے ہیں آپ اندھوں کو، واہ کیا بات غوث اعظم کی، بینا کرتے ہیں آپ اندھوں کو، واہ کیا بات غوث اعظم کی، اور رہزنوں کو بنا دیا رہبر، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سارے عالم پہ حکمرانی ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سارے عالم پہ حکمرانی ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، کیا کروں بات غوث اعظم کی، اور ڈوبی کشتی نکالی دم بھر میں، واہ کیا بات غوث اعظم کی، ڈوبی کشتی نکالی دم بھر میں، واہ کیا بات غوث اعظم کی، اور قطب الاقطاب ان کو رب نے کیا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، قطب الاقطاب ان کو رب نے کیا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، اور شیر پر بھاری آپ کا کتا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شیر پر بھاری آپ کا کتا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شیر پر بھاری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ کیا بات غوث اعظم کی، اور چور ابدال کر دیے دم میں، چور ابدال کر دیے دم میں، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، کیا کروں بات غوث اعظم کی، ذی حشم ذات غوث اعظم کی۔ حضرات توجہ سے میری تھوڑی دیر کی گفتگو کو آپ سنیے، میں حضرت کی خصوصی دعائیں چاہتا ہوں، اگر باتوں میں سچائی ہو تو آپ قبول کر لینا۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جب جائیں تو آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، بہت بھاری بھرکم اردو نہ بولنا جانتا ہوں میں کہ آپ کے سامنے بولوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ جب بھاری اردو خود نہیں سمجھ پاتا تو آپ کو کیسے سمجھا سکوں گا۔ بہت آسان لب و لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے مجھے سمجھ سکیں۔ حضرات جی لگائیے، آپ ایک بات سب سے پہلے یہ بتائیے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ حضرات ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، ہم یہ جان سکیں کہ اسلام کا قانون ہمارے اوپر کیا نافذ کیا گیا ہے، اس قانون کو کیسے فالو کیا جائے گا۔ ہمارے لیے ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم اسلامی زندگی کس طریقے سے گزاریں، ہم چلیں تو کیسے چلیں، ہم مسکرائیں تو کیسے مسکرائیں، ہم سوئیں تو کیسے سوئیں، ہم کھائیں تو کیسے کھائیں، ہم پیئیں تو کیسے پیئیں، ہم بولے تو کیسے بولے، ہم بڑوں سے ملے تو کیسے ملے، چھوٹوں سے ملے تو کیسے ملے۔ اسلامی رویے کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے یہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جینے کو تو ہر آدمی جی رہا ہے مگر اپنی طبیعت سے جی رہا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے، اپنے من کی مرضی جی رہا ہے، اپنے من کی زندگی جی رہا ہے، اپنی طبیعت کی زندگی جی رہا ہے۔ مسلمان اپنی طبیعت کی زندگی نہیں جیتا، مسلمان اپنے خیال کی زندگی نہیں جیتا، مسلمان اپنے ارادے کی زندگی نہیں جیتا، مسلمان اپنی مرضی کی زندگی نہیں جیتا۔ ہم لوگ کیسے جی رہے ہیں؟ سچی بات بتا رہا ہو، آپ بھی اپنی طبیعت سے جی رہے ہو، آپ بھی اپنی طبیعت کی زندگی گزار رہے ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو۔ ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ حضرات گرامی، ذرا سوچ کے دیکھیے، ہماری مرضی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، بول لیتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے کسی کو فریب دینے کی، دے دیتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے چغلی کرنے کی، کر لیتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی
होती है हराम खाने की खा लेते हैं, हमारी मर्जी होती है नमाज छोड़ने की छोड़ देते हैं, हमारी मर्जी होती है शराब पीने की पी लेते हैं, हमारी मर्जी होती है जुआ खेलने की खेल लेते हैं, हमारी मर्जी होती है अय्याशी करने की कर लेते हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। होना ये नहीं चाहिए। मुसलमान अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जीता। गौर से सुनिएगा, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया था, बता ये काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, मियां ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते। कहा जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है, मोमिन कौन होता है। कहा हाँ हाँ बताइए, काफिर कौन होता है, मोमिन कौन होता है। उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी जीता है, उसकी तबीयत में जो आती है वो कर लेता है, जो उसके मन में गुजरता है वो कर लेता है, जो उसके ख्याल में आता है वो कर लेता है। झूठ बोलना चाहे बोल लेता है, शराब पीना चाहे पी लेता है, गाली देना चाहे दे देता है, फाहिशा के अड्डे पे जाना चाहे चला जाता है। वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जीता, बल्कि जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है। मुसलमान अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जीता, मुसलमान तो खुदा की मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजार देता है। मगर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मैं ये नहीं कहता, मगर आप भी जब चाहते हो झूठ बोल लेते हो, आप भी जब चाहते हो हराम खा लेते हो, आप भी जब चाहते हो सजदे छोड़ देते हो, आप भी जब चाहते हो गाली दे देते हो। मैं आपसे कहता हूँ नहीं नहीं, जरा सा अपने आप को संभालने की जरूरत है। कदम कदम पे आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, हमें अपनी मर्जी से नहीं जीना है, हमें खुदा की मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजारना है। जी लगाकर बातों को सुनिएगा, तवज्जो है आपकी, आपका ध्यान किधर है? कितने लोग सुनने जरा एक बार हाथ उठाकर बताएं। आपसे ज्यादा बुलवाऊंगा भी नहीं, बस कभी कभी हाथ उठाऊंगा इसलिए ताकि मुझको ये महसूस हो कि आप सुन रहे हैं, मुझको इसी से अंदाजा हो जाएगा। ना आपसे ये कहूंगा कि नारा लगाइए, नारे का वक्त बचा के रखिएगा तो थोड़ी देर में आपसे बात कर लूंगा। मेरे जाने के बाद कल कोई ये कहे ना कहे कि मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की नहीं, ये जरूर कहे। मैं दुआ करता हूँ मालिक लोग ये कहें कि मौलवी जब आया था ये बता के गया है और मैं इस पे अमल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ये बात का चर्चा, इस बात का चर्चा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और फिर आपका जलसा भी मकबूल होगा, आपका जलसा भी कामयाब होगा। मुसलमानों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से न जियो, रब की मर्जी पे अपनी जिंदगी को छोड़ दो। इंसान तो आज अपने जान की हिफाजत के लिए तो कोशा है, इंसान अपनी जान की हिफाजत के लिए सोच रहा है, अपने माल की हिफाजत के लिए सोच रहा है, अपने खानदान की हिफाजत के लिए सोच रहा है, सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं, जिसका जो काम है वो करना चाहिए, जो जिसका काम है वो करना चाहिए। आपका काम है अल्लाह की इबादत करना, आपका काम है अल्लाह की बंदगी करना, आपका काम है रब की बड़ाई बयान करना, आपका काम है तस्बीह व तहलील करना, आपका काम है अल्लाह को याद करना, और जिसका जो काम है वो करता रहेगा। हज़रात मगर हमने ठेका ले लिया है, कैसे हम बच पाएंगे, कैसे हमें रिस्क मिलेगा। मैं कहता हूँ रज़ाक़ परवरदिगार है, आपका जो काम है पहले वो तो करो, परवरदिगार रोजी अता फरमाएगा, हज़रात रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। हमने ठेका ले लिया, हमने ठेका ले लिया। अपने आप में जितना एतमाद है आपको अपने रब पर उतना एतमाद नहीं है। मौलवी के जुमले सुनो, अपने रब पर इतना एतमाद करो, अपने आप पर एतमाद ना करो, अपने से ज्यादा अपने रब पर एतमाद करो। वही जिंदगी देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है। आपकी अगर तवज्जो हो तो एक बात कहो, दुआ फरमाए। हज़रात सुनिए,
हमें अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारना है। हमें रब ने जिस काम के लिए पैदा किया है हमें उस काम में लग जाना चाहिए, हमें उस काम में लग जाना चाहिए। मियां मोहम्मद बख्श एक बुजुर्ग गुजरे हैं। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा था, तस्बीह में मगन था, अल्लाह की याद में मगन था। कौन से सुनिएगा, मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं अल्लाह की याद में मगन था, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, किबरियाई बयान कर रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक दरख्त है, उस दरख्त पर एक परिंदा बैठा हुआ है, अपने घोंसले में बैठा हुआ। मियां मोहम्मद बख्श ने फाख्ता का जिक्र फरमाया है। ये वाकया मियां मोहम्मद बख्श खुद फरमाते हैं कि ये वाकया किसी और का नहीं, मेरा आंखों देखा हाल है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के वली, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, वो अल्लाह का वली जो दिलों का हाल जान लिया करता है, दिलों की कैफियत से वाकिफ हो जाया करता है। वो फरमाते हैं दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की याद में मगन था, तस्बीह व तहलील कर रहा था, अल्लाह की पाकी बोल रहा था, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था। सामने दरख्त पर एक घोंसले में एक परिंदा बैठा हुआ, एक चिड़िया बैठी हुई, वो भी अल्लाह की याद में मगन थी, वो भी तस्बीह पढ़ रही थी, वो भी अल्लाह की पाकी बोल रही थी, वो भी अल्लाह की बड़ाई बयान कर रही थी। अचानक क्या मैंने देखा, एक शिकारी आया, शिकारी की नजर उस परिंदे पे पड़ जाती है। शिकारी ने देखा वो परिंदा घोंसले में बैठा हुआ है, वो शिकारी अब शिकार करना चाहता है, कमान में तीर चढ़ाया, अभी उसकी तरफ तीर को चलाना ही चाह रहा था, परिंदे की नजर शिकारी पे पड़ गई। वो परिंदा जो तस्बीह पढ़ रहा था, वो परिंदा जो अल्लाह की याद में मगन था, वो परिंदा जो अल्लाह की बोली बोल रहा था, वो परिंदा जो अल्लाह की बाकी बोल रहा था, उसकी नजर शिकारी पे पड़ गई। उसे पता चल गया कि ये मुझे शिकार करेगा, ये मेरी जान ले लेगा। शिकारी को देखते ही परिंदा अपने घोंसले से उड़ जाता है और आसमान में परवास करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। मैं देख रहा था, मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं सारा मंजर देख रहा था। अल्लाह के वली है ना, दिलों का हाल जानने की सलाहियत रहती है उनके अंदर। वो देख रहे हैं कि परिंदा उड़ गया, क्यों उड़ा? उसने शिकारी को देखा, परिंदा उड़ गया, ख्याल ये था कि ये मार डालेगा, ख्याल ये था कि ये शिकार कर लेगा। परिंदा उस ख्याल से उड़ा कि जब मैं उड़ूंगा, जब मैं परवास करूंगा तो निशाना ये लगा नहीं पाएगा। अब वो आसमान में परवास करने लगा परिंदा, उस परिंदे की नजर फिर ऊपर पहुंचती है। वो देखता क्या है परिंदा, परिंदा देखता है कि जहां वो उड़ रहा है उसके ऊपर एक बाज चक्कर लगा रहा है और उसकी भी नजर उसी परिंदे पे है। वो बाज इसी को शिकार करना चाह रहा है, वो बाज भी इसी की जान लेना चाह रहा है। अल्लाहू अकबर। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं सारा मंजर देखता रहा, वो परिंदा उलझ के रह गया। मैं अगर उड़ता रहूं तो बाज मेरा शिकार करेगा, अगर जाके परिंदा सोच रहा है अगर मैं जाके दरख्त पे बैठ जाऊं, घोंसले में बैठ जाऊं तो ये इंसान मेरा शिकार करेगा। दोनों हाल में मेरी जान जा रही है, अब करूं तो करूं क्या? ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं आ सकता, अब करूं तो करूं क्या? ऊपर उड़ता रहूं तो बाज अपनी जान, बाज मेरी जान ले लेगा, नीचे आकर बैठ जाता हो तो फिर ये इंसान मेरी जान ले लेगा, करे तो करे क्या? आखिरकार उस परिंदे ने फैसला किया अगर बाज को शिकार ही करना है तो करे, इस इंसान को शिकार ही करना है तो करे, बाज का काम शिकार करना वो शिकार करे, ये इंसान जो शिकार करने आया है वो शिकार करे, मेरा काम बंदगी करना है, मेरा काम इबादत करना है, मेरा काम तस्बीह पढ़ना है, मेरा काम अल्लाह की इबादत करना है। मैं अल्लाह की याद में मगन थी ना, मैं अल्लाह की याद में मगन था ना, मैं अल्लाह की याद में मगन था ना, मैं तस्बीह पढ़ रहा था, मैं तस्बीह पढ़ रहा था, मैं अल्लाह की बाकी बोल रहा था। चलो वही काम करता हूँ, बाकी रब की मर्जी, अब छोड़ देता हूँ रब की मर्जी पे। वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है। परिंदा वहां से चला, उड़ते हुए परिंदा फिर घोंसले में जाकर बैठ जाता है और कुछ नहीं देखता, बस अल्लाह की याद में मगन हो जाता है। वो परिंदा अल्लाह की इबादत में मगन हो जाता है, वो परिंदा अल्लाह की तस्बीह व तहलील में मगन हो जाता है। इधर शिकारी की नजर तो टिकी हुई थी, देखा कि परिंदा आकर घोंसले में बैठ गया है, अब कमान में तीर चढ़ाया है और कमान में तीर चढ़ा करके अब शिकारी कर रहा था क्या? कमान में तीर चढ़ाया और जैसे कि खींच करके तीर चलाना चाहा, अभी
तो आधा तीर निकला ही था, अचानक एक सांप आया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं सारा मंदिर में देख रहा था, एक सांप आया, शिकारी के अंगूठे पे डंक मार दिया, शिकारी के अंगूठे को काट लिया, और जैसे ही काटा दर्द हुआ। अब उसका बैलेंस बिगड़ा, अब जब बैलेंस बिगड़ा तो तीर उस घोंसले में पहुंचने के बजाय तीर आसमान की तरफ चला गया। जब तीर आसमान की तरफ चला गया तो जो बाज आसमान में चक्कर लगा रहा था, तीर जाकर बाज को लग गया। तीर के लग जाने से बाज मर गया, सांप के डस लेने से वो इंसान शिकारी मर गया। परिंदे की जान बच जाती है, परिंदे की जान की हिफाजत। पता क्या चला? क्या पता चला? अल्लाह की याद में मगन हो जाओ ना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तुम अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ दो, तेरी जान की हिफाजत करने वाला परवरदिगार है। अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो। सुभान अल्लाह। आपकी तबीयत लग रही है? सुन रहे आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठाकर जरा बताएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी बताइए, जो बात मैं कह रहा हूं सच्ची है? आप लोग गुनाह करते हैं? करते हैं? कितने लोग गुनाह करते हैं? हाथ उठाकर बताइए तो जरा देखिए। कुछ लोग गुनाह करते हैं और कुछ लोगों से गुनाह हो जाता है। कुछ लोग गुनाह करते हैं और कुछ लोगों से गुनाह हो जाता है। जो बात मैं बताना चाहता हूं उसे गौर से सुनिए। हमसे अगर गुनाह न भी हो, हम अगर गुनाह न भी करें, फिर भी आजिज़ी इनकिसारी ये है कि अल्लाह की बारगाह में कहें, मालिक बड़े गुनहगार हैं हम, तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर आप हमेशा के लिए गुनाहों से बचते चले जाएं। बात सच्ची है, हमसे गुनाह हो जाता है, गुनाह कर लेते हैं, कभी झूठ बोल लेते हैं, किसी को फरेब दे देते हैं, सजदा छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, गाली दे देते हैं, हराम खा लेते हैं, अय्याशी कर लेते हैं, आवारगी कर लेते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, गुनाह करते वक्त ये ख्याल होता है, ये ख्याल आता है कि नहीं कि खुदा देख रहा है? ख्याल आता है? थोड़ी सी बात कीजिए आप मुझसे। ख्याल आता है कि खुदा देख रहा है? कमजोर से कमजोर ईमान वाला हो, फिर भी गुनाह करते वक्त ये ख्याल जरूर होता है कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। मैं कहता हूँ लोगों, अगर ये ख्याल होता है कि खुदा देख रहा है तो फिर गुनाहों से बचते क्यों नहीं हो? गुनाहों से बचते क्यों नहीं हो? अगर ये ख्याल आपका है, अगर ये अकीदा आपका है, अगर ये ईमान आपका है कि खुदा हर हाल में देख रहा है, तो हमें गुनाहों से रुक जाना चाहिए, हमें गुनाहों से बच जाना चाहिए। जब जब आप सजदे छोड़ते होंगे तो ख्याल आता होगा कि खुदा देख रहा है। अजान हो रही है, हम नारा लगाते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, आदमी कोशिश करता है, आदमी मेहनत करता है, लेकिन ऐलान होता है, हर रोज 5 मरतबा ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम झूठे हैं जी, हम झूठे हैं। कहते हैं कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है, अगर हम जाने को तैयार नहीं है। कैसा कामयाब होना चाहते हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा था, हमें बचना चाहिए गुनाहों से। हमें ये ख्याल अगर आता है कि अल्लाह देख रहा है तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब गुनाहों से जब हमें बचना चाहिए, ये ख्याल आता है कि खुदा देख रहा है, गुनाह करते वक्त ये ख्याल आता है कि खुदा देख रहा है, तो फिर हमें गुनाहों से बच जाना चाहिए। अगर हम गुनाहों से नहीं बच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें खुदा से डर नहीं लगता है, हमें खुदा से डर नहीं लगता। अगर खुदा से डर लगता तो गुनाहों से बचते, अगर खुदा से डर लगता तो सजदे के आदी होते, अगर खुदा से डर लगता तो हम तिलावत के आदी होते, अगर खुदा से डर लगता तो हरामखोरी से बच जाते, अगर खुदा से डर लगता तो हम चुगली से बच जाते, अगर खुदा से डर लगता तो हम अय्याशी से बच जाते, खुदा से डर लगता तो हम आवारगी से बच जाते। हमें खुदा से डर नहीं लगता है, सच्ची बात कह रहा हूँ। वो बहुत बड़ा झूठा है जो ये कहता है हमें किसी से डर नहीं लगता, हम तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं।
गुनाह से बचिए और ये ख्याल पैदा हो कि खुदा देख रहा है तो फिर हमें बचना चाहिए। आप स्टेशन पे जाते हैं, बड़ा स्टेशन है आपके यहाँ, वाराणसी बड़ा जंक्शन है, आप जाते हैं, आपसे क्या कहा जाता है? जैसे ही दाखिल होना चाहते हैं कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है और उसी लिखे हुए में कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा, खबरदार आप कैमरे की नजर में है। होता है ऐसा? किसी बड़े महकमे में जाइए, आप तो वहां लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नजर में है। प्लेटफार्म पे जाइए तो लगता है लिखा हुआ रहता है कि आप कैमरे की नजर में है। बड़ी दुकान पे आप चले जाएंगे, वहां लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नजर में है। कैमरा लगा हुआ है, आप कैद किए जा रहे हैं, आपकी सारी नकलो हरकत कैद हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सब कुछ कैद हो रहा है। आपको डर लगता है, प्लेटफार्म पे जाना है। अब जो रेलवे का कानून है, गौर से सुनिएगा, जो रेलवे का कानून है उसका पालन करना है, जो रेलवे का कानून है उसे फॉलो करना है। अगर उसके खिलाफ आपने काम किया तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा, नहीं तो आपको 6 महीने की कैद होगी, नहीं तो 6 महीने जेल जाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा या 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? नहीं, लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में है। अगर रेलवे कानून के खिलाफ कोई कदम उठाया तो 500 रुपए जुर्माना, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बचना चाहिए। आपको डर लगा कैमरे से, बच गए आप गुनाह से। आप जाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, आप जाते हैं तो आप गैस सिलेंडर लेके अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए कि ये रेलवे कानून के खिलाफ है। आपने ऐसा किया तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। बच गए, कैमरे से डर लगा। आप गए दुकान पर, वहां लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में है। कोई सामान लेना था, दुकानदार से कहा फला सामान चाहिए। अब दुकानदार अंदर गया, कोई सामान ला करके आपको देना है, वो अंदर गया, ख्याल आया काउंटर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपके हाथ में झोला है। आपने सोचा कि वो तो अंदर जा चुका है, उठाया सामान आपने अपने झोले में रख लिया, कोई नहीं देख रहा है। फिर ख्याल आया नहीं, कैमरे की नजर में है, कैमरा देख रहा है। अगर मैं घर चला भी गया तो ये दुकानदार पुलिस लेकर मेरे घर तक पहुंच जाएगा, इसलिए कि कैमरे में कैद हुआ जा रहा है, कैमरे में कैद किया जा रहा है। सारी नकलो हरकत कैमरे में कैद हो रही है। कैमरे से डर लगा आपको, आपने झोले से सामान निकाला, फौरन फिर काउंटर पे रख दिया, इसलिए कि कैमरा देख रहा है, कैमरे की नजर में है। आप गुनाहों से वहां बच गए, रेलवे स्टेशन पे गुनाह से बच रहे हैं, आप दुकान पे गुनाह से बच रहे हैं। क्या पता चला आप रेलवे स्टेशन के उस कैमरे से तो डरते हो, आप दुकानदार के कैमरे से डरते हो, मगर अपने रब से नहीं डरते हो। अगर रब से डर रहे हो तो यहाँ भी आप गुनाह से बच गए होते। कैमरे से हमें डर लगता है, हमें रब से डर नहीं लगता है। और मुसलमानों, रब से डरने की जरूरत है। रब से डरो, इसलिए कि रब देख रहा है, रब देख रहा है, रब देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तुझे मालूम नहीं है, क्या तुम जानते नहीं हो कि खुदा देख रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि खुदा देख रहा है। गुनाहों से बचने की जरूरत है। दुरूद शरीफ पढ़ी है तो एक बात अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में है, साथ में जुलेखा भी है। अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया गया है। जुलेखा ने जब दरवाजा लॉक कर दिया तो जिस कमरे में जुलेखा है और जिस कमरे में हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी हैं, क्या किया जुलेखा ने? उस कमरे में जगह जगह बुत रखे हुए थे, उस बुत पे उन्होंने पर्दा डालना शुरू किया। उस जुलेखा ने बुत पे पर्दा डालना शुरू किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ जुलेखा क्या कर रही हो? कहा पर्दा कर रही हो। कहा क्यों पर्दा कर रही हो? तो उसने जवाब दिया, गुनाह करने में शर्म आती है, ये मेरा खुदा है ना, ये मेरा खुदा है ना, अपने खुदा के सामने हया आती है गुनाह करते हुए, इसलिए पर्दा कर रही हो, इसलिए पर्दा डाल रही हो, अपने रब के सामने पर्दा कर रही हो, पर्दा कर रही हो ताकि वो देख न सके। अल्लाहू अकबर। ज़हन दे रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं, ए जुलेखा क्या गजब की बात कर रही हो तुम, पर्दा उस पे डाल रही हो जो भूत है, जो देखता भी नहीं है, जो सुनता भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है, तुम उसका पर्दा कर रहे हो, जबकि वो तेरा रब है भी नहीं, वो तेरा खुदा है भी नहीं। तू जानती है कि ये भूत है,
खुदा देख रहा है, हमें रब से डरना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफर में निकला, सफर में निकलने से पहले ख्याल आया सफर करूंगा, रास्ते में भूख भी लगेगी, थोड़ा सा सामान रख लेता हूँ, खाने का कोई सामान आपने रख लिया कि सफर करते हुए अगर भूख लगेगी तो तनावुल फरमा लूंगा, तनावुल कर लूंगा, मैं रास्ते में खा लूंगा। गौर से सुनिए, चलते रहे, सामान सफर लिया, थोड़ा सा खाने का सामान लिया, चलते रहे चलते रहे, एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में सफर शुरू होता है, जंगल से निकल रहे थे, जंगल में चलते चलते आपने क्या देखा, सामने एक नौजवान दिखता है, एक नौजवान दिखता है, जिस्म पे गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है, मगर पेशानी से तकवे का नूर नजर आ रहा है, पेशानी पर सजदे का नूर नजर आ रहा है। नौजवान सामने था, क्या देखता है, बकरियों का एक रेवड़ है, उस रेवड़ से एक बकरी निकलती है, बकरी निकलती है, दाएं भागती है, वो नौजवान जाता है उसके पीछे, उसे पकड़ के लाता है, रेवड़ के बीच रखता है, दूसरी बकरी बिलक के भाग जाती है, दूसरी बकरी को पकड़ के लाता है तो तीसरी भाग जाती है, तीसरी को पकड़ के लाता है तो चौथी रेवड़ से निकल जाती है। चुनांचे वो नौजवान परेशान है, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, तमाशत की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, दोपहर की चिलचिलाती धूप, वो नौजवान पसीना पसीना है, बकरियों के पीछे परेशान है। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने महसूस किया ये किसी का गुलाम जरूर होगा, ये किसी का नौकर जरूर होगा, इतनी मेहनतें कर रहा है, दोपहर का वक्त हो गया है, इसे भी भूख लगी होगी, इसलिए कि ये यहाँ बकरियां चरा रहा है, ये आखिर है तो किसी का गुलाम, है तो किसी का नौकर, भूख तो इसे भी लगी होगी। चलो एक काम करते हैं, इस नौजवान के साथ बैठ करके खाना खा लेते हैं, दोपहर का वक्त हो गया है। गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम गुलाम मुस्तफा हैं जी, हम गुलाम मुस्तफा हैं, हम आका के उम्मत के अफराद हैं। थोड़ी देर के लिए जरा सोच के देखो, अगर तेरे किसी अमल से मुस्तफा को तकलीफ हो गई, अगर तेरे किरदार से मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ हो गई, बताओ कि तेरा हश्र क्या होगा, बताओ तेरा ठिकाना क्या होगा। तुम उस नबी के बारे में कोई फिक्र नहीं करते हो, आपका यार आपसे रूठ जाए, आपका दोस्त आपसे रूठ जाए, आपके खानदान के लोग रूठ जाए, आपको बड़ी फिक्र होती है, सिफारिश पे सिफारिश हो रही है, मगर मैं आपसे कहता हूँ मुसलमानों, आपका नबी रूठ जाए आपको गम नहीं है, आपके आका को तकलीफ हो जाए आपको फिक्र नहीं है। याद रखना, जब तेरा कोई सहारा नहीं होगा, कब्र की अंधेरी कोठरी में भी तेरे रसूल का सहारा तुझे मिलेगा, तेरे आका का सहारा तुझे मिलेगा। उस नबी को क्यों रूठने देते हो, उस नबी को क्यों तकलीफ पहुंचाते हो? अपने किरदार से मुस्तफा को राजी करो, अपने कैरेक्टर से मुस्तफा को राजी करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, उन्हें कोई काम ऐसा न करो जो आपको तकलीफ हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा आओ भूख लग गई है, दोपहर का वक्त हो गया है, मिलके खाना खा लेते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, मैंने रोजा रखा है, आप खाना खा लीजिए। सुभान अल्लाह, आप खाना खा लीजिए, मैंने रोजा रखा है। तबीयत आपकी लग रही है? कितने लोगों की जरा हाथ भागे बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मैं जानता हूँ, असल में जलसों में ऐसी तकलीफ सुनने के लोग आदि हो गए हैं कि हर तरफ से सिर्फ नारे लगना चाहिए, कहा होना चाहिए, हंसी की महफिल होनी चाहिए। खबरदार खबरदार प्यारे मुसलमानों, उस जलसे से बरकत खत्म हो जाती है जहाँ हंसी की महफिल लग जाती है, जहाँ कहकहे लगाए जाते हैं। गौसे आदम के जलसे की कैफियत को देखो तो आपको समझ में आएगा कि जलसा किस लिए किया जाता है। हजरत जलसे को कहकहे की महफिल बना करके गौसे आदम की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ सुनो। वो नौजवान कहता है कि मैंने रोजा रखा है, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा, हो सकता है कि ये अपने तकवे का धौंस जमाना चाह रहा हो, ये अपनी इबादत गुजारी का धौंस जमाना चाहता हो, ये अपने रोजे का धौंस जमाना चाहता हो, मुत्तकी बनना चाह रहा हो। लेकिन आओ जरा इम्तिहान तो इसका ले लेते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अच्छा तो आपने रोजा रखा है, बज़ाहिर पेशानी से तकवे का नूर दिख रहा है, बदन पे गोश्त नहीं हड्डी नजर आ रही है, पेशानी से सजदे का नूर बरसता चला जा रहा है। वो बोलता है नौजवान तो उसकी मुस्कुराहट से ईमान ताजा हो जा रहा है। वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैंने कहा हो नौजवान एक काम करो, तुम इतनी बकरियां चरा रहे हो, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं उसकी कीमत तुझे दे देता हूँ, उसकी कीमत तुझे दे देता हूँ, एक बकरी मेरे
नाम बेच दो, मेरे हाथ बेच दो। नौजवान कहता है ये बकरियां मेरी नहीं है कि मैं बेच दूं, इन बकरियों का मालिक कोई और है, इन बकरियों का मालिक कोई और है, इन बकरियों का मालिक कोई और है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता, इन बकरियों का मालिक मैं नहीं हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैंने कहा ए नौजवान तेरा मालिक यहाँ तो नहीं है, तेरा मालिक यहाँ तो नहीं है। तू जब शाम को घर जाएगा पलट कर तुझसे सवाल अगर होगा कि एक बकरी कम है तो जवाब देना। उम्मन भेड़िया जंगल से निकला करता है, बकरियों का शिकार किया करता है, तुम अपने मालिक से ये बता देना कि एक भेड़िया निकला था और एक बकरी उठाकर लेकर चला गया, एक भेड़िए ने एक बकरी का शिकार कर लिया, बता देना। कहा झूठ नहीं बोलूंगा, अपने मालिक से झूठ नहीं बोलूंगा। अब कब बोलिएगा आप, अपने मालिक से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों क्या कहा उसने, बकरी चराने वाला है मगर बता रहा है कि झूठ नहीं बोलूंगा। एक नौजवान बकरी चराने वाला है, किसी का गुलाम है मगर बोल रहा है झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का नौकर है मगर बोल रहा है झूठ नहीं बोलूंगा। अरे वो नौकर किसी का भी हो मगर पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौकर है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौकर होता है वो झूठ नहीं बोला करता, वो फरेब नहीं देता। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहंशाह दो आलम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। झूठ नहीं बोलूंगा। अरे भाई कौन सा तेरा मालिक देखने के लिए यहाँ आया है, बकरी बेच दो मेरे हाथ मछली बेच दो, मैं तुझे कीमत भी देता हूँ और यहीं पे अभी ज़बह भी करूंगा, ज़बह करने के बाद गोश्त भी थोड़ा बांट करके तुझे दे दूंगा। कहा कि आप जो कहिए वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, इसलिए कि इन बकरियों का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा मालिक कोई और है, इन बकरियों का मालिक कोई और है। कहा वो देख तो नहीं रहा है ना, वो देख तो नहीं रहा है ना। उस नौजवान ने जवाब दिया अरे वो नहीं देख रहा है मगर जो पूरी कायनात का मालिक है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, उसके बारे में क्या इरादा है आपका। जो कायनात का मालिक है वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं वो सुहाना वक्त था, कितनी सुहानी घड़ी थी, वो कितना अच्छा वक्त था। एक बकरी चराने वाला जानता है कि खुदा देख रहा है, एक नौकर बता रहा है कि खुदा देख रहा है, एक गुलाम बता रहा है कि खुदा देख रहा है, और आज के डॉक्टर को पता नहीं कि खुदा देख रहा है, आज के इंजीनियर को पता नहीं कि खुदा देख रहा है, आज के पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं कि खुदा देख रहा है। जितना पढ़ता चला जा रहा है आदमी इसी कदर खुदा की रहमतों से दूर होता जा रहा है। आगे लोगों सुनो, उलमा की सोहबत में रहा करो ताकि पता चल सके कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। और जब ये एहसास होगा कि खुदा देख रहा है तभी हम गुनाहों से बच पाएंगे, तभी मक्कारी से हम बच पाएंगे। आजकल तो मक्कारी ज्यादा हो रही है, हाँ मक्कारी ज्यादा हो रही है, और इसी मक्कारी से न जाने कितने नुकसानात हो रहे हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं जो अर्ज कर रहा था सुनिए, हम परेशान हैं, परेशान हैं हम। कोई आदमी आपको ऐसा दिखेगा जो परेशान नहीं है कोई नहीं मिलेगा, सब परेशान है, सब दुखी है, सब टेंशन में जी रहा है, अरबपति हो खरबपति हो सब टेंशन में जी रहा है। हजरात मैं आपसे कहता हूं बस एक टेंशन लीजिए, एक टेंशन लीजिए, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक टेंशन ले लीजिए, वक्त आए तो हमें नमाज छोड़ना नहीं है, सारा टेंशन खत्म। फज्र से लेके ज़ोहर तक में जितना टेंशन होगा वो ज़ोहर के वक्त आप मस्जिद जाएंगे सारा टेंशन खत्म। ज़ोहर से लेकर असर तक में जितना टेंशन हो असर में जाएंगे सारा टेंशन खत्म। असर से मगरिब तक जितना टेंशन हो मगरिब में जाइए सारा टेंशन खत्म। टेंशन तो हम मोल ले रहे हैं, हम तो टेंशन मोल ले रहे हैं,
टेंशन हम खरीद रहे हैं। मैं कहता हूँ टेंशन खत्म करो, सजदे करो, टेंशन खत्म हो जाएगा, तिलावत करो, टेंशन खत्म हो जाएगा। और एक और तरीका बताता हूँ, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं ना जी, अपना हुलिया गुलाम की तरह बना के रखो ना। मुस्तफ़ा का गुलाम सबसे अलग हुआ करता है, मुस्तफ़ा का गुलाम सबसे अनोखा होता है, मुस्तफ़ा का गुलाम सबसे निराला होता है। वो अपने चेहरे से पहचान लिया जाता है, मुस्तफ़ा का गुलाम चेहरे से पहचान लिया जाता है। हम तो अपना हुलिया भी गुलाम जैसा नहीं बना है, नबी के गुलामों जैसा चेहरा भी बना के नहीं रखे, तो बताओ कि हमारी पहचान फिर क्या होगी। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा भी हम नहीं रखते, एहतमाम हम नहीं करते, सच बोलने के हम आदी नहीं हैं। हज़रात किराम, मैं आपसे कहता हूँ जरा हुलिया बना के तो रखो। हम जानते हैं कि आप गुलाम तो पक्का नहीं बन सकते, मगर गुलामों जैसी सूरत तो बना के रखो, दीवानों जैसा हाल तो बना के रखो, दीवानों जैसा हुलिया तो बना के रखो। कम से कम इतना ही हो जाए ना, तो देखो मुस्तफ़ा का करम कैसे होता है, अल्लाह की रहमतों की बरसात कैसे होती है। हर हाल में आपका ख्याल ये होना चाहिए, जब जब गुनाह की घड़ी आए, ख्याल ये हो कि हमारा खुदा देख रहा है, हमारा खुदा देख रहा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गौर से मेरे एक जुमले को आप सुनिएगा। आज तो आपको जलसे में, माफ कीजिएगा, मैं उलमाए किराम से भी माजरत चाहता हूँ, जो बात सच्ची है वो बता रहा हूँ। आज तो बात बात पर लोगों को इस बात की खुशखबरी दी जाती है, बिशारत सुनाई जाती है, ये कर लो जन्नती हो जाओगे, वो कर लो जन्नती हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी सी बात पे ये बताया जाता है कि जन्नती हो जाओगे, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती प्यारे मुसलमानों, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। अगर आसानी से जन्नत मिल लगी होती, कोई मैदान जिहाद में उतरता क्यों, कोई तहज्जुद गुजार बनता क्यों, कोई तकवा शिआर बनता क्यों, कोई आबिद शब्द बनता क्यों। पता ये चला आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, तलवारों के साए में गर्दन कटाना पड़ता है तब कहीं जाकर जन्नत मिलती है, तहज्जुद गुजार होना पड़ता है तब जाकर जन्नत मिलती है। मेरे दोस्तों, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है। तकवा शिआर बनो, कुरान की तिलावत का आदी बनो। जब परेशानी घेर लो, जब मुसीबत घेर ले, तो एक नुस्खा मैं दे रहा हूँ। हज़रात किराम, आप दुआएं करते हो मुसीबत दूर नहीं होगी, आप दुआएं करते हो परेशानी खत्म नहीं होगी, दुआएं करवा रहे हो दूसरों से फिर भी परेशानी खत्म नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूँ सुनो सुनो, जब सारा आलम सो जाए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, रात के 1 बजे 2 बजे आप उठो, सबसे पहले तो नमाजों के पाबंद हो जाओ। 1-2 बजे रात को उठो, जब सारा आलम सो रहा हो, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, बैठ जाओ मुसल्ले पे, नमाज़े नफ्ल अदा कर लो, और उसके बाद दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, अपनी बातें पेश करो, अपनी बातें खुदा की बारगाह में पेश करो। जब तुम महसूस करोगे कि मैं अपने रब से अपनी हाजतें पेश कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, धीरे धीरे तेरी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। जब तुम रोने लगोगे तो तुम्हारी कैफियत सामने आ जाएगी, फिर ये तुम महसूस करोगे कि हम अपने रब से बातें कर रहे हैं, हम अपने रब से बातें कर रहे हैं। और जब ये महसूस हो जाएगा कि हम अपने रब से बातें कर रहे हैं, तो फिर ये भी महसूस करोगे कि दुनिया की सारी नेमतें सिमट कर मेरे दामन में आ गई है, सिमट कर मेरे दामन में आ गई है। फिर सारा टेंशन तेरा खत्म हो जाएगा, सारी मुसीबतें तेरी दूर हो जाएगी। इसलिए कि जिसे रब की रज़ा हासिल हो जाए, फिर उसकी जिंदगी में टेंशन ही नहीं है, मुसीबत ही नहीं। हर हाल में हमारा ईमान ये हो कि खुदा देख रहा है। हमें गुनाहों से बचना चाहिए, हमें खताओं से बचना चाहिए, हमें आवारगी से बचना चाहिए, हमें अय्याशी से बचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जन्नत नहीं मिलती। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद न लीजिए, जो आपका काम है वो कीजिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप तो सुकून चाहते हैं ना, आप तो चैन चाहते हैं ना, चैन कहाँ से मिलेगा, सुकून कहाँ से मिलेगा। इंसानों ने ये तसव्वुर कर लिया कि पैसों में सुकून मिलता है, नोटों में सुकून मिलता है, सरमाए में सुकून मिलता है, और यही वजह है कि लोग नोटों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। सरमाया जमा करने की खातिर न जाने कैसे कैसे मरहले तय कर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये फिक्र नहीं होती जायज तरीके से माल हम कमा रहे हैं या नाजायज तरीके से माल कमा रहे हैं, हलाल तरीके से माल कमा रहे हैं या हराम तरीके से माल कमा रहे हैं। बस माल कमाते चले जाओ, सरमाया जमा करते चले जाओ, पैसे जमा
जमा करते चले जाओ। याद रखना प्यारे मुसलमानों, पैसों में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है। अगर दौलत में सुकून हासिल होता तो फिर मखदूमे की छोजा ने बादशाही को ठोकर क्यों मार दी, बादशाही को ठोकर क्यों मार दी थी, फकीरी क्यों अख्तियार कर ली थी? पता क्या चला, जो टूटी हुई चटाई पे सुकून सजदों में मिला करता है, वो गद्दे पे सुकून नहीं मिलता। तवज्जो है आपकी? हज़रात जी लगाएं तो एक बात मैं करूं आपके सामने, जरा सा देखें आप ये चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में चैन चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, आओ मैं आपको एक बात बताता हूं प्यारे मुसलमानों, लगन लग जाए ना, खुदा की यादों की लगन लग जाए। लगन लगाना हो तो खुदा की यादों की लगन लगाओ, अल्लाह की इबादत की लगन लगाओ, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान करने की आदत जिंदगी में डाल दो, तेरी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। हम खुदा की रहमतों से दूर हो रहे हैं, जन्नत की राह से हम दूर हो रहे हैं, हम जहन्नम के रास्ते पे चलते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, बुजुर्गों के तरीके को अपनाने की जरूरत है, गौसे आजम के रास्ते को अपनाने की जरूरत है, करीम नवाज के रास्ते को अपनाने की जरूरत है, महबूब इलाही के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। जी लगाए, इब्राहिम बिन अदहम का नाम आपने सुना होगा। इब्राहिम बिन अदहम, इंसान हर एक की तमन्ना तो यही है ना कि खुदा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। हर इंसान चाहता है खुदा राजी हो, और जिस इंसान को ये पता चल जाए कि अल्लाह नाराज है तो फिर बताओ उसे चैन मिलेगा क्या, उसे सुकून मिलेगा क्या? हर पल वो परेशान दिखेगा, हमसे खुदा नाराज हो गया, तब न मेरे बेटे की मौत हो गई, हमसे खुदा नाराज हो गया, तब न मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हमसे खुदा नाराज हो गया, तब न मेरे घर में आग लग गई। पता क्या चला, इंसान खुदा की रजा चाहता है, कैसे खुदा की रजा हासिल होगी, कैसे तुम खुदा की रजा हासिल कर सकोगे? आओ जरा सा हम देखना चाहते हैं। याद रखना, मेरा जुमला सिर्फ याद रखना, हर हाल में खुदा देख रहा है, कहीं भी रहो खुदा देख रहा है, किसी भी हाल में रहो खुदा देख रहा है। और जब खुदा देख रहा है तो गुनाहों से बचो, खुदा देख रहा है तो खताओं से बचो, खुदा देख रहा है तो झूठ से बचो, खुदा देख रहा है हरामखोरी से बचो, खुदा देख रहा है मक्कारी से बचो, खुदा देख रहा है मक्कारी से बचो, खुदा देख रहा है जासी से बचो। हज़रात कोई नहीं जानता कि तेरे अंदर का हाल क्या है। आप अपने आप को अगर पारसा साबित करना चाहें तो चौराहे पे पारसा साबित कर सकते हैं, स्टेज पर अपने आप को पारसा साबित कर सकते हैं, मगर आपको क्या पता कि मौलवी जुनैद बंद कमरे में क्या करता है? गुनाह तो अंधेरे में होता है, गुनाह तो तारीकी में होती है, गुनाह तो चुपके चुपके हुआ करता है। गुनाह जब लोग करते हैं तो छुपके किया करते हैं। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, इंसान अच्छा वो नहीं होता जिसकी अंजुमन अच्छी होती है, जिसकी महफिल अच्छी होती है, जिसका स्टेज अच्छा होता है, जिसकी मजलिस अच्छी होती है, वो इंसान अच्छा नहीं होता। वो इंसान अच्छा नहीं होता जिसकी महफिल अच्छी हो, इंसान अच्छा वो होता है जिसकी तारीख रात अच्छी होती है, जिसका बंद कमरा अच्छा होता है, जिसका अंधेरी रात अच्छी होती है। स्टेज तो सब देख रहा है, महफिल तो सब देख रहा है, बंद कमरे में कौन देख रहा है कि वो क्या कर रहा है? गुनाह तो बंद कमरे में होता है, गुनाह तो तारीकी में हुआ करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, कोई देखे न देखे, खुदा देखे। बात मेरी समझ में आ रही है? आजकल तो मक्कारी ही हो रही है। मक्कारी बंद कमरे में होती है क्या? बात कर रहा हूं आपसे, मक्कारी बंद कमरे में होती है? नहीं ना, मक्कारी चौराहे पे होती है, मक्कारी मैदान में होती है, मक्कारी स्टेज पे होती है, मक्कारी महफिल में हुआ करती है। बंद कमरे में तो अल्लाह की याद होती है। हज़रात आदि बन गए, अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए, अंदर से इंसान को अच्छा होना चाहिए, और जो अंदर का अच्छा होता है वो अल्लाह वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं बात कर रहा था इब्राहिम बिन अदहम, अल्लाह अल्लाह, बल्ख के बादशाह थे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम। हुआ क्या? हम लोग सुकून चाहते हैं ना? कितने लोग सुकून चाहते हैं? हाथ उठाइए, मैं देखूं जरा सबको। वैसे जानते हैं जलसों में तो आए लेकिन जहाँ कहाँ जाते रहते हैं, मगर यहाँ के लोग बड़े अच्छे सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुनने के आदी हैं, सच्ची बातें सुनने के आदी हैं, गौर से सुन रहे हैं लोग। मैं आपसे यही कहता हूँ, मैं तो चला जाऊँगा, मगर जो उलमा यहाँ आपकी खिदमत में रहते हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी सोहबत में रहिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जितना वक्त आप उनकी खिदमत में देंगे उतनी देर तक आप गुनाहों से महफूज रहेंगे।
वक्त दीजिए, बेवजह वक्त अपना बर्बाद मत कीजिए। एक बात की खुशी ये भी होती है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ जो 15 साल का, 17 साल का, 20 साल का नौजवान है वो भी अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाए रखा है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा के गुलाम को ऐसा ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम बिन अदहम वक्त का बादशाह जहाँ सोता है उससे पहले कई दरवाजे हैं और दरवाजे पर, हर दरवाजे पर पहरादार नंगी तलवार लिए खड़ा है, कोई अंदर जा न सके। अंदर बादशाह सो रहा है, अंदर बादशाह सो रहा है, अंदर बादशाह सो रहा है। अचानक आंख खुली, महसूस हुआ मेरे कमरे में कोई आया है। उठ करके दाएं बाएं झांका, आगे पीछे देखा, कोई नहीं है। ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे धोखा हो रहा है, जरा पहरेदारों को बुला लूं, देख लूं कि पहरादार अपनी ड्यूटी में है कि नहीं। आवाज दिया, सबके सब हाजिर हुए। कहा मियाँ कैसे पहरा लगाते हो, कैसी ड्यूटी कर रहे हो, मेरे कमरे में अभी कोई आया था। कहा बादशाह सलामत जान की अमान हो, आपके कमरे में कोई आएगा कैसे, हर दरवाजे पे पहरेदार नंगी तलवार लिए खड़े, कोई अंदर कैसे आ पाएगा। कहा आया था ना। कहा आया था तो गया कहाँ। कहा यही तो पता नहीं कि गया कहाँ, मगर आया था। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा ठीक है जाओ तुम लोग ड्यूटी करो। सारे लोग चले गए, सब ड्यूटी में लग गए। सोए फिर बादशाह, थोड़ी देर के बाद फिर वो उठे, महसूस हुआ कोई आया था, आकर फिर चला गया। दाएं बाएं झांका, कोई नहीं है। छत पे गए, इब्राहिम बिन अदहम अपनी छत पे जब गए तो वाकई कोई था, जाके पकड़ लिया। बादशाह वक्त ने पकड़ लिया और पकड़ के कहा कहाँ, किधर आए हो, किस लिए आए हो, क्या जरूरत थी, यहाँ क्यों आए, किस वजह से आए, किस खातिर आए, किस काम से आए। सवाल पे सवाल, वो खामोश, चुप हो गए। कहा बताऊं क्यों आया था, बताओ कि यहाँ क्यों आया था। कहा हाँ बताओ, मेरी छत पे क्या कर रहे हो। कहा मेरा ऊंट खो गया है, ऊंट को ढूंढने के लिए आया हूँ, ऊंट को ढूंढने के लिए आया हूँ। कहा ऊंट खो गया तो कहीं चौराहे पे तलाश करो, कहीं मैदान में तलाश करो, किसी गली में तलाश करो, खेत खलियान में तलाश करो, कहीं ऊंट छत पे मिलता है क्या। तो पलट के जवाब दिया, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो नर्म गद्दे पे रब नहीं मिलता, नर्म गद्दे पे रब नहीं मिलता। अगर रब को तलाश करना हो तो अल्लाह के जिक्र में उसे तलाश करो, सजदों में उसे तलाश करो। आप खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं, कहाँ खुदा की रजा हासिल होगी। सजदे तो करने के हम आदी नहीं है, इबादत के तो हम आदी नहीं है, तिलावत के तो हम आदी नहीं है, सच्चाई के तो आदी नहीं है। वही इब्राहिम बिन अदहम है, बादशाही को उन्होंने ठोकर मार दी। क्यों ठोकर मार दी मालूम है, फकीरी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे सुनो, वो बादशाह जहाँ सोते थे ना, उस गद्दे पे 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां पहले बिछाई जाती थी। 1 कुंटल गुलाब फूल देखा है कि नहीं आप लोगों ने, उसमें कांटे भी होते हैं, पत्तियां होती हैं, रेडी भी होती है, तो रेडी निकाली जाती थी, उससे कांटे निकाले जाते थे और सिर्फ पत्तियां होती थी 100 केजी, और बादशाह के गद्दे पे उन पत्तियों को बिछाई जाती थी। अल्लाह अकबर। उसके बाद बादशाह उस पे सोया करता था। एक तो ऐसे ही बादशाह का गद्दा नर्म होगा, हमारा गद्दा जब 15,000 20,000 का होता है, 10,000 5,000 का होता है, तो बादशाह का गद्दा कितना नर्म होगा और कितना कीमती होगा। फिर भी 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां उस पे बिछाई जाती थी। उसके बाद फिर आकर के बादशाह उस पे सोता। तवज्जो है आपकी, कितने लोगों की हाथ उठाकर जरा बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, उस काम के लिए एक नौकरानी को रखा गया था, एक औरत को उस काम के लिए मामूर किया था। एक कमीज थी जिसकी ये ड्यूटी थी, 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां उसके बेड पे बिछाई जाती थी। फिर वो औरत बाहर निकल करके बताती थी बादशाह से कि आपका बिस्तर तैयार है। फिर बादशाह अंदर आता था और उसके बाद उस बिस्तर पे सोता। जिंदगी का यही मामूल था, हर रोज 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछाई जाती, सुबह उठने के बाद उसे साफ किया जाता,
जाता, वो पत्तियां बाहर की जाती, नई गुलाब की पत्तियां फिर आती थी, दूसरी रात बिछाई जाती, फिर बाहर जाकर के वो खातून कहती कि बिस्तर तैयार है तो आके सोता। यही जिंदगी का मामूल था। एक रोज जमाना गुजर गया, एक रोज उस औरत को ये ख्याल आया कि ये बादशाह कैसे सोता है इस पे, बादशाह को कैसे नींद आती है इस पे, बादशाह को कैसे सुकून आता है इस पे। एक तो गद्दा नर्म है और नर्म गद्दे पे फिर ये 100 केजी फूल की पत्तियां बिछवाता है, गुलाब फूल की पत्तियां, फिर वो सोता है। जरा देखूं तो सो के कैसा लगता है सोने में, जरा सो के देखूं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जरा देखूं कि सोने में कैसा लगता है। अल्लाहू अकबर, इस इरादे से वो सो रही है, इस ख्याल से वो सो रही है कि देखूं कि सोने में लगता कैसे है। जैसे ही उस बिस्तर पे फूल की पत्तियां बिछा के वो लेती हैं तो कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही, उसका दिलो दिमाग भी मुअत्तर हो गया। और जब फूल की पत्तियों की नमी का एहसास हुआ है उसके बदन को, फौरन आंख लग जाती है, फौरन उसे नींद आ जाती है। नींद आ गई तो आ गई। बादशाह बाहर इंतजार कर रहा है, अब तक वो खातून निकली नहीं है, अब तक वो कनीज निकली नहीं है, वो नौकरानी बिस्तर लगा के अब तक आई नहीं है। बात क्या है, देर तक इंतजार करता रहा। जब ज्यादा इंतजार हो गया ना तो बादशाह खुद ही अंदर चला, जरा देखें आज देर क्यों हो रही है, इतना तो वक्त लगता नहीं था। बादशाह अंदर आया तो देखता क्या है, नौकरानी उसी बेड पर सोई हुई है, उसी गद्दे पे सोई हुई है जिसपे बादशाह वक्त सोया करता है। जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया, मारना शुरू किया। तेरी इतनी हिम्मत, बादशाह के बिस्तर पे तू सोए, इतनी जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे तू सोए, आज तेरी चमड़ी उतार लेता हूँ। कोड़े लगाते गए, उसके बाद सिपाहियों को आवाज दिया, सारे सिपाही मौजूद, सबके हाथ में कोड़े दिए गए और सिपाहियों इतने कोड़े लगाओ, इतने कोड़े इस औरत को मारो कि इसकी सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। गौर से मेरा जुमला सुनिएगा, इतने कोड़े से मारो सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। अल्लाहू अकबर, अब कोड़े लग रहे हैं सिपाहियों को, जल्लाद के कोड़े लग रहे हैं तो वो रो रही है, दर्द हो रहा है तो रो रही है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, फरियाद कर रही है, वो चीखती चली जा रही है, वो फरियाद करती चली जा रही है, वो आहो बका करती चली जा रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं। कोड़े पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं, वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रहे, वो फरियाद करती रही, मगर कोई मदद को आने वाला नहीं, इसलिए कि बादशाह का हुक्म हो चुका था, बादशाह सलामत का हुक्म था। इतने कोड़े मारो कि इसकी सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए बदन से। कोड़े लगते रहे, लगते रहे, लगते रहे, वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अचानक वो मुस्कुरा देती है, अचानक वो हंस पड़ती है। बादशाह सारा मंजर देख रहा था, आगे बढ़ा, कहा सिपाहियों ठहरो, सब रुक गए, कोड़ा बंद हो गया, कोड़ा लगना बंद हो गया। बादशाह ने आगे बढ़कर उस खातून से कहा, खातून जल्दी बता कर तू रो रही थी, अचानक मुस्कुरा क्यों दिया, अचानक हंसने क्यों लगी, अचानक क्यों हंसने लगी। हजरात मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ मैं। हजरात जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतना ज्यादा नर्म गद्दा होता है, उतना कीमती गद्दा होता है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हो, छोड़ दो गद्दों को, टूटी चटाई पे आके सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, आपके दिल को सुकून हासिल होगा। आया आगे, जल्दी बता के तू क्यों हंस पड़ी है, जल्दी बता के तू क्यों हंसने लगी है, जल्दी बता के तू मुस्कुराने क्यों लगी। वो कहती है एक बात का ख्याल आ गया इसीलिए मुस्कुराने लगी, एक बात का ख्याल आ गया तो हंस दिया। कहा जल्दी बताओ ख्याल क्या आया, तू तो रो रही थी, क्या ख्याल आया जो हंस दिया, क्या ख्याल आया जो मुस्कुरा दिया। औरत का जवाब सुनो, औरत का जवाब सुनो। वो जवाब देती है, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, कोड़े लग रहे थे तो रो रही थी, कोड़े बरसाए जा रहे थे, दर्द हो रहा था तो चीख रही थी, फरियाद करती जा रही थी, कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रहा था, रो रही थी। अचानक ख्याल आया, मैं इरादा करके सोने का इरादा लेके सोई तो थी नहीं, मैं नियत करके सोई तो थी नहीं, मैं तो बेइरादा सिर्फ इसलिए लेटी हुई थी कि देखे सोने में कैसा लगता है। तो नींद आ गई, और जब नींद आई थोड़ी देर देर के एक दिन उस बेड पे सोया तो इतने कोड़े लगे हैं जो परसों से ही पे सो रहा है, उसको कितने कोड़े लगेंगे, उसको कितने कोड़े लगेंगे। इतना सुना तो बादशाह का दिमाग ठिकाने लग गया। फिर वहीं से उन्होंने शहंशाही को ठोकर मार दी, फकीरी अख्तियार कर ली, अल्लाह ने वली कामिल बना।
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مشکلوں سے گزرنا ہوگا، مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، پریشانیوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ جو چاہو گے کہ زندگی میں بس خوشحالی رہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا پیارے مسلمانوں۔ میں پوری تفصیل نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو لوگ۔ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہاں آقا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہو یا رسول اللہ؟ سب سے زیادہ محبت آپ سے فرماتے ہیں، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جواب دیا تھا، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مصیبتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں سے دو چار آنے کے لیے تیار ہو۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، مصیبتیں زندگی میں آئیں گی، اور یہ مصیبتوں کا آنا ہمارے لیے نعمت بھی تو ہے پیارے مسلمانوں۔ اگر مصیبت نہیں آئے گی تو رب کی رحمت کو آواز کیسے دو گے؟ خدا کے کرم کو پکارو گے کیسے؟ خدا کی رحیمی کو آواز کیسے دو گے؟ اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ملے کہ جب گناہ کی گھڑی آئے تو خیال یہ آئے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے نبی کے غلام ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اچھا آپ لوگ اللہ والے ہیں کیا؟ ہاتھ نیچے کیجیے۔ ہم لوگ گنہگار ہیں جی، ہم لوگ بڑی خطا کار ہیں۔ ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ باتیں اس وقت بہت ساری ذہن میں اتر رہی ہیں اور کئی شوشے اور گوشے ہیں، مگر میں ہر طرف جانا نہیں چاہتا، بہت سمیٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال دیجئے، دنیا دیکھے، دنیا دیکھے، دور ہی سے دیکھ کے کہے یہ محمد کا غلام ہے، اللہ صلی اللہ، دیکھے تو کہے یہ محمد کا غلام ہے۔ اور محمد کے غلاموں پہ مصیبت تو ہے۔ تاریخ پڑھیے، آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیے، آپ کو لگے گا ایسا کہ جو مصیبتوں سے وہ لوگ گزرے ہیں نا، وہ مصیبت ابھی آئی کہاں؟ کیا پتہ نہیں ہے نبی سے جتنے محبت کیا اتنی ہی تکلیف پہ انہیں ڈالا گیا۔ ہمیں تو آگ کے انگاروں پہ ابھی جلایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت بلال کو تو کوئلے پہ رکھا گیا، حضرت بلال کو تو پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا، حضرت صہیب رومی کو جلایا گیا، کوئلے کی آگ پہ انہیں جلایا گیا، پیٹھ ان کی جلا دی گئی، حضرت خبیب کی پیٹھ جلا دی گئی، کتنی مصیبتوں سے ان لوگوں کو گزارا گیا، مگر کیا ہوا؟ محمد کے غلام بن کے رہے۔ محمد کی غلامی میں جو مزہ ہے حضرات کہیں اور مزہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور جو غلام ہوتا ہے وہ دیوانہ صورت ہوتا ہے، دیوانہ صفت ہوتا ہے، دیوان کی تاری رہتی، کچھ نہیں جانتا میں محمد کا غلام، کچھ نہیں جانتا میں محمد سے محبت کرتا۔ شریعت کی پاسداری ہو، پابند شریعت رہیے اور زندگی گزارتے رہیے، دیکھیے کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، حضرت گزر رہے تھے، بچے پتھر مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ اچھا پتھر لگے کسی کو تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ہوگا نا؟ آپ بھی بولیے تھوڑا، درد ہوگا؟ درد ہوگا، درد ہوگا تو روئیں گے نا، ہنسیں گے کیا؟ مگر پتھر اسے لگ رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے، بزرگ گزر رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ دیوانہ ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ انسان پاگل کی طرح جھومتا ہوا مستی میں چلا جا رہا ہے۔ بچے پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے جا رہے ہیں اور وہ مسکراتا جا رہا ہے، اللہ مسکراتا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا میاں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ درد نہیں ہو رہا ہے پتھر لگنے سے؟ پتھر لگنے سے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ محمد کی غلامی کا اثر ہے، سبحان اللہ، محمد کی غلامی کا اثر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بچوں تم پتھر کیوں مار رہے ہو؟ کیوں انہیں پتھر مار رہے ہو؟ کیا بگاڑا اس نے؟ کہا بہت بڑا دعویٰ اس نے کیا ہے، اور یہ ایسا دعویٰ ہے یہ کہ یہ دعویٰ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، مگر اس نے کر دیا ہے، اس لیے مار رہے ہیں۔
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कहा क्या दावा किया इसने? बच्चों ने कहा ये कहता है कि मैं खुदा को देखता हूं। बच्चों ने जवाब दिया कि ये कहता है कि मैं खुदा को देखता हूं। कहा अच्छा ये कहता है? हाँ। कैसे हैं हम? दीवाना कैसा होता है सुनिए। करीब गए, कहा मियां सुना है कि बच्चे पत्थर इसलिए आपको मार रहे हैं कि आपका दावा यह है कि मैं खुदा को देखता हूं। कहा हाँ देखता हूं, देखता हूं। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि एक पल में अगर खुदा की याद में गाफिल हो जाओ तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि मैं खुदा की नजर से दूर हो जाऊं, खुदा की नजर ये दीवानगी है, ये दीवानगी है। हम कैसे दीवाने? हम दीवाना तो नहीं बन सकते मगर दीवानों जैसी सूरत तो बना सकते हैं ना। तबीयत आपकी लगे तो और 5 मिनट टाइम ले लूं मैं। बोले कितने लोग सुनेंगे? एक बहरूपिया बादशाह, एक बादशाह, वो अरबी बादशाह था, मजहबी ख्याल का था। बादशाह की खिदमत में हर तरह के लोग रहा करते थे और सबका अपना अपना काम, सबकी अपनी ड्यूटी होती थी। दीवाना बन के रहिए, अगर दीवाना नहीं बन सकते तो दीवानों जैसी सूरत बना दीजिए। बात मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा जुमला याद रखिएगा, हर हाल में खुदा देख रहा है। बादशाह की खिदमत में उलमा की जमात, मुफ्तियान किराम की जमात, मुहद्दिसीन की जमात, कुर्रा की जमात, हुफ्फाज की जमात, सारे लोग रहा करते, सबका अपना अपना काम था। जहां जैसी जरूरत पड़ती बादशाह काम ले लिया करता। इस्लामी बादशाह था, मजहबी ख्याल का था, अदबी ख्याल का था। तो बादशाह की खिदमत में एक बहरूपिया भी रहता था। तो थोड़ा सा मिजाज ऐसा था कि मजाक भी करना चाहता था बादशाह, कभी उलझन होती तो उसे इस्तेमाल करता। समझिए ए बच्चों, तुम लोग किसी से बात न करो, बस बात खत्म कर रहा हूं। तो बादशाह की जो खिदमत में वो बहरूपिया रहता था, उसकी ड्यूटी ये थी, बादशाह की तरफ से कहना ये था कि सुनो, तुम अपना भेष बदल बदल के मेरे पास आया करो और मुझे धोखा दिया करो, धोखा दिया करो। तुम अपना भेष बदलो, हुलिया बदलो, चेहरा बदलो, जो करना है तुम्हें करो, मगर तुम ये साबित कर दो कि मैं तुझको नहीं पहचान पाया कि तू कौन है। तुम ये साबित कर दो कि मैं तुझे नहीं पहचान पा रहा हूं। तुम अपना हुलिया बदल के लो, आओ और मुझे धोखा दे दो। इससे फायदा तुम्हारा ये होगा, जो तुम्हारी ड्यूटी है उस ड्यूटी को कर रहे हो तुम, पैसे तुम्हें मिल रहे हैं, लेकिन तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। और जिस दिन तुम धोखा देने में कामयाब हो गए तो आधी सल्तनत भी दे दूंगा। बादशाह ने क्या कहा? जिस दिन कामयाब हो गए आधी सल्तनत भी दे दूंगा। बहरूपिया बहुत कोशिश किया, अपना हुलिया बदलता रहा, अपना चेहरा बदलता रहा, लिबास बदलता रहा, जो चाहा जैसे चाहा उसने कोशिश तो किया, मगर जब आता बादशाह की खिदमत में तो बादशाह मुस्कुरा के कहता तू तो वही है। क्या कहता? तू तो वही है। तो वो बहरूपिया उस वक्त थोड़ा सा ढीला पड़ जाता, कमजोर अपने आप को महसूस करता कि मैं कामयाब नहीं हो सका, अपनी ड्यूटी सही से कर नहीं पा रहा हूं, इतने दिन हो गए, लगता है कि अब यहाँ से मुझको बादशाह निकाल देगा। एक दिन बादशाह से जाके कहता है, बादशाह सलामत जान की अमान हो तो एक बात कहूँगा। कहा एक कोशिश और मुझको कर लेने दीजिए, फिर आपकी जो मर्जी होगी सो आप करेंगे। बस यही बात मैं करके आपसे रुखसत हो जाता हूँ। बादशाह ने कहा तुमको जो करना है करो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जिस रोज तुम कामयाब हो जाओगे मुझे धोखा देने में, उस रोज आधी सल्तनत तेरे नाम। बादशाह बड़ा ज़हीन था, जब आता तो पहचान ही जाता था। बहरहाल एक रोज क्या किया उसने, उस बहरूपिया ने, हम जैसे लोगों की तरह पगड़ी उसने अपने सर पे बांधा, जुब्बा भी किसी से मांग के लाया होगा, जुब्बा भी चढ़ाया, अपने चेहरे का रंग बदला,
सब कुछ बदला, ऐसा महसूस हो कि कोई पहचान ना सके। जो उसकी तबीयत में आया अपने तौर पे उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। पगड़ी बांध लिया, जुब्बा पहन लिया, तस्बीह हाथों में लिया, चला। जो रास्ता शहर के अंदर आता था जंगल के किनारे से, उस रास्ते पे जाकर वो बैठ गया। बैठने के बाद बस तस्बीह हाथ में है, अल्लाहू 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 रट लगा, और कोई दूसरा काम नहीं, बस अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहा है। बोलो, वो बहरूपिया क्या अल्लाह वाला था? बोलिए, था जी? नहीं ना। क्या वो अल्लाह वाला हो गया था? नहीं ना। गौर से सुनिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि हुलिया बना लीजिए, दीवानों जैसी, दीवानों जैसी सूरत बना लीजिए। तो क्या किया उसने फिर? अल्लाहू अल्लाहू करता रहा। जो लोग गुजरते थे ना उस रास्ते से, वो सब देखते थे। एक दो रोज देखा कि ये यहाँ पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, कहीं जाता ही नहीं है, बस अल्लाहू अल्लाहू करता रहता। ये फकीर, ये अल्लाह वाला, कोई काम से मतलब ही नहीं। धीरे धीरे ये खबर बादशाह तक पहुंची कि शहर में एक अल्लाह वाला आया है, एक फकीर आया है, एक बुजुर्ग आया है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो रास्ते के किनारे बैठा हुआ है, रास्ते से लोग गुजरते हैं, दुआएं करवाते हैं, लोग गुजर जाते हैं, वो वही बैठा रहता है, अल्लाह की याद में मगन है। लोग खूब उनसे दुआएं करवा रहे हैं, बरकतें हासिल कर रहे हैं। 2-4 रोज लोगों ने बताया, फिर कुछ वजीर भी आए इस ख्याल से कि चलिए मैं भी दुआ करवा लेता हूँ। वो लोग भी आए, दुआ करवाए, चले गए। बादशाह को खबर मिलती जा रही है, कई रोज गुजर गए। वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, चलना चाहिए, अल्लाह वाले की खिदमत में चलना चाहिए, अल्लाह वालों की खिदमत में जाकर दुआएं करवाना चाहिए। अगर आपका हुक्म हो तो सवारी तैयार करूं, चलें आप भी। बादशाह इनकार करता रहा। ये खबर पूरे शहर में जब फैल गई कि अल्लाह वाला आया है, तस्बीह में मगन रहता है, अल्लाहू अल्लाहू करता रहता है। ये सब क्यों कर रहा था वो? बोलिए, धोखा देने के लिए। क्या हुआ? बादशाह तक ये खबर पहुंची। अब बादशाह थोड़ा मुतासिर हुआ। बेटी को खबर मिली, बादशाह की बेटी को। बेटी ने कहा, अब्बू जान आपको अभी नहीं जाना है, पहले मैं जाती हूँ, जायजा लेती हूँ, जरा खबर लेती हूँ, क्या सही है क्या गलत है। बेटी आती है, गुजर रही थी, देखा अल्लाह वाला बस मगन है, अल्लाहू 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 करता जा रहा है। बेटी आई, देखा उनकी सूरत, देखा उनका हुलिया, देखा। देखने के बाद वो भी मुतासिर हो गई, दुआएं करवाया। दुआएं करवा लेने के बाद अशरफियों की थैली पेश किया। बहरूपिया ने कहा, ले जाओ, हम अल्लाह वालों को इन अशरफियों की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है, तू लेके जा। बहुत मुतासिर हुई वो, हाँ बहुत मुतासिर हुई। अशरफियों की थैली वापस लेकर चली गई। बादशाह से जाकर बताया, अपने बाप से जाके बताया। बादशाह भी मुतासिर हुआ, कहा तो फिर कल मैं भी चलता हूँ, जरा उनसे दुआएं ले लेता हूँ। अल्लाहू अकबर। अब बादशाह चला है, सिपाहियों के साथ चला है, लाहौर लश्कर के साथ चला है। उस फकीर के पास पहुंचा है जिसे बहरूपिया कहा जा रहा है। उस फकीर के पास पहुंचा है जहाँ अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहा है। पहुंचा, देखा अल्लाह वाला बैठा हुआ है, अल्लाह की याद में मगन है, अल्लाहू अल्लाहू करता चला जा रहा है। कदमों को बोसा दिया बादशाह ने, फिर उससे दुआएं करवाया बादशाह ने। दुआएं करवा लेने के बाद अशरफियों की थैली खिदमत में पेश किया। उसने कहा, बादशाह ले जा अपने अशरफियों की थैली, हम जैसे फकीरों को इन अशरफियों की जरूरत नहीं है। बादशाह ने बड़ी मेहनत समाजत की, मगर उसने अशरफियों की थैली कबूल न किया। बादशाह ने दुआएं करवाने को कहा, दुआएं करने को कहा, उसने दुआएं कर दी। बादशाह रुखसत होता है। बादशाह ने 2-4 कदम बढ़ाया था, अब वो फकीर उठता है, अब वो बहरूपिया उठता है, और उठने के बाद जाकर आवाज दिया, कंधा पकड़ के कहा, बादशाह सलाम, जरा रुख तो फेरो। जब रुख फेरा है, जैसे ही बादशाह ने अपना रुख फेरा, अपने सर से पगड़ी उतार दी, अपने बदन से जुब्बा उतारा, अपना जो चेहरा बना के बदल के रखा था वो सारी चीजें अपने चेहरे से हटाया। कहा, अरे ये तो तू वही है, ये तो वही है। आज तू कामयाब हो गया, आज तू कामयाब हो गया, आज तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया, मगर मैं भी बादशाह हूँ, अपनी जुबान बदलूंगा नहीं, मैं भी वादे का पक्का हूँ। चल मैं तुझे आधी सल्तनत दे देता हूँ, मगर सुनो इसका जवाब, सल्तनत की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? तू तो ये सब कुछ
पैसे ही के लिए कर रहा था ना, दीनार दिरहम ही के लिए कर रहा था ना, अशरफियों के लिए कर रहा था, दौलत के लिए कर रहा था। कहा तुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या आपने नहीं देखा? अभी तो मैं अल्लाह वाला हुआ भी नहीं था, अल्लाह वाले जैसी सूरत बनाया था। बादशाह मेरे कदमों में झुक गया, जब अल्लाह वाला हो जाऊंगा तो फिर कायनात मेरे कदमों में झुक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, नौजवानों, आप एक बात का ख्याल जरूर रखना, कहीं से आपको ये न दिखे कि हम नबी के गुलाम नहीं हैं। हर हाल में जब कोई आपको देखे तो कहे ये नबी का गुलाम है। और ये कब होगा? सबसे पहले हमें नमाज की आदत हमें आ जानी चाहिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए। आप लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, हर आदमी मसरूफ रहता है, हर आदमी बिजी रहता है, हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। वक्त आपके पास नहीं है, मगर मैं कहता हूँ आपके पास वक्त नहीं है, मगर सारा वक्त तो इसी काम के लिए है। आपको अल्लाह ने पैदा ही इसी काम के लिए किया है। सबसे पहले उसी काम को अंजाम देना है, फिर देखना जिस कारोबार से आप जुड़े हुए हो उसमें कैसी बरकतें आती हैं, किस तरीके से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। नमाज की बड़ी बरकतें हैं प्यारे मुसलमानों। नमाज से जुड़ के रहिए, सजदे से जुड़ के रहिए। सजदे में कैफ है, सजदे में सुरूर है। जब आप सजदा करते हैं, बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। हजरात याद रखना, बस मेरा एक जुमला याद रखना। अब मैं रुखसत हो रहा हूँ। न अरबपति की दुनिया में कमी है, न खरबपति की कमी है, न लाखपति की कमी है, पैसे वालों की कमी नहीं है दुनिया में। मगर याद रखना प्यारे मुसलमानों, होगा कोई अरबपति तो होगा, मगर इस्लाम की नजर में वो एक कौड़ी का नहीं है अगर वो नमाज का आदी नहीं है, अगर वो नमाज का आदी नहीं है, अगर वो तिलावत का आदी नहीं है। अरबपति हो सकता है तू जमाने का, मगर इस्लाम की नजर में एक कौड़ी की तेरी हैसियत रखी है। कोई रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो सजदे का आदी है तो फिर वो अनमोल है, उसे कोई ताला नहीं जा सकता, उसकी कीमत नहीं लगाई। इसलिए नमाज के आदी बन के रहिए, नमाज से जुड़ जाइए, सजदे से जुड़ जाइए, गुनाहों से बचिए। जब कोई गुनाह की घड़ी आए फौरन ख्याल ये हो कि खुदा देख रहा है। अल्लाह करम फरमाए। मैंने जो कुछ बातें कही हैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मालिक, अगर कहने में कोई लफ्ज़िश कोई ख़ता हो गई हो तो अपने फضل से अपने महबूब के सदक़े में ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, और गलतियों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मक़बूल फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, शहीरे यारे रम ताजदार हरम, शहीरे यारे रम शफाअत पे लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। डाल
دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وقف کی زندگی جس نے حق کے لیے، وقف کی زندگی جس نے حق کے لیے، اس امین شریعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہے میرے حماد ملت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کر ہمیں عطا یا رب، دے ہمارے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب ہمارے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، اور بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، ہمارے دل سے ہمیں بھلا یا رب، خاک کر اپنے آستانے کی، یوں ہم سب کو خاک میں ملا یا رب، ہماری آنکھیں ہمارے لیے ترسیں، ہم سے ایسا ہمیں چھپا یا رب، تو نے ہمارے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، ہماری ماں بہنیں بھانجے سب پائیں آرام دوسرا یا رب، اور بھی جتنے ہمارے پیارے ہیں حاجتیں سب کی ہو روا یا رب، اہل سنت کی ہر جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب، دشمنوں کے لیے ہدایت کی تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع خیر خاتمہ یا رب، خدایا مرادوں سے دامن کو بھر دے، جنون محبت دے ذوق نظر دے، بدل دے نوشتے وہی دور کر دے، علی کی سی ہے بشکوہ عمر دے، اور پڑے جو بھی مشکل وہ آسان کر دے، مولا ہم مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے، پروردگار کرم فرما، فضل فرما، رحمت نازل فرما، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں مالک سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، الفتیں دقتیں پریشانیوں کو دور فرما دے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما دے، جادو بری بلا آفت پریشانی بدنگاہی سحر جھوٹ چگلی غیبت تمام بری باتوں سے بالخصوص شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، زندہ رکھ ایمان پر، موت نصیب فرما ایمان پر، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے میرے مالک ان کی پریشانیوں کو تو وہاں دور فرما دے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، ان پر اپنا فضل فرما، رحمت نازل فرما، غوث پاک کے صدقے سے مالک ان کی پریشانیوں کو مشکلوں کو دقتوں کو دور فرما دے، ان کو چین و سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، قرار عطا فرما دے، پروردگار جو بیمار ہیں ہم میں
ان کو شفائے کلیہ عطا فرما دے. جن کے والدین حیات ہے پروردگار ان کے والدین کو صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام اعضاء کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. جن کے والدین رخصت ہو گئے پروردگار جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے پروردگار ان تمام کی مغفرت فرما دے. ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما دے, حشر کی منزل کو آسان فرما دے, ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے. پروردگار اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے جس طور پر حصہ لیا ہے میرے مالک اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے, غوث پاک کے صدقے سے پروردگار ان کے کاروبار میں, روزگار میں, رزق میں, دکان مکان میں, آل اولاد میں دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرما, خوب خوب برکتیں عطا فرما, خوشحالیاں عطا فرما. پروردگار میرے مالک ہم سب کو مسلک حق, مسلک اہل سنت, مسلک امام اعظم جس کو صرف پہچان کے لیے ہم بریلوی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, مالک اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر ہمیں موت دے دے. پروردگار ہماری جن بہنوں کو اچھے رشتے نہیں ہیں میرے مالک اپنے کرم سے ان کو سنی صحیح العقیدہ رسول پاک سے محبت کرنے والے سچے اچھے رشتے عطا فرما دے. جن بہنوں کو رشتے تو ہو گئے مالک لیکن ان کو اولاد نہیں ہے پروردگار ان کو امام حسین کے صدقے سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. پروردگار جو لوگ مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا آرزو رکھتے ہیں دلوں میں پروردگار ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. طبیعت ٹھیک نہیں, استنجا بھی لگ رہا ہے بہت سے. چلو وہی اتنا بولا لگتا ہاں وہی خالی دوا مانگا لگتا. ہاں گاڑیاں گلیا میں کوئی نہ, یہ رجوا گیا دکان کھلے لو.